Hello students. So today we are going to start our new exercise 3.3, and in this 3.3 we are going to learn the method to solve the linear equation in two variable, that is substitution method. Okay, so in this video I'm going to teach you that how you can use substitution method to solve the quadratic equation, linear equation in two variable. So let's start. So the question is like you have if I'm going to solve the question number first, that x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So you have these two equations, x plus 14, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. Then first of all, this is equation number 1, this is equation number 2. Now you have to find out the value of variable, any variable or from any इक्वेशन. ठीक है, हमेशा आप कोशिश करो कि आप उस वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करो वेरिएबल की जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो. ठीक है, आप ये चीज पे ध्यान रखिए कि आप उसका हमेशा वैल्यू फाइंड करें जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो. तो आई कैन सी दैट x का भी यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है, y का भी नहीं है, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईदर x or either y, and also you can find the value from either of the equation, means from first or from second, from anywhere. So from equation first, x will be equal to 14 minus y, because it is plus y. When we take this on other side, it will become minus y. So name this as equation number third. आपने इसको equation number third कहते हैं. ठीक है. Now put equation third in equation second. ठीक है, तो जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है हमने फाइंड आउट की है, ये आपने x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देना है. ठीक है, सो इट बिकम 14 minus y is equal to 4, then minus y will be 2y is equal to 4. ये प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन जैसे आप सॉल्व किया करते थे 8th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही सिंपलीफाई करना है. टेक द वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड आपने लेके जाना है. तो -2y is equal to 4 minus 14 will be -10. This minus cancel with this one, so y is equal to 10 upon 2 and it become 5. ठीक है, तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, 5 आती है. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third. आपने थर्ड में पुट करना है and you will get the value of x. So put y is equal to 5 in equation third. ठीक है, आप जो वैल्यू फाइंड करोगे y की या x की वो आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो एंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, सो x is equal to 14 minus 5, then x is equal to 9. So you can see we have both the values, y is equal to 5 as well as x is equal to 9. So x is equal to 9 and the second is y is equal to 5. ठीक है, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Now we can solve question number okay. I'm going to solve question number 6. ठीक है, first का 6th part I'm going to solve because in this one you have like this. So in this one you have equation 3x upon 2 minus 5y
अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि जब आप इक्वेशन आपकी फ्रैक्शन में है तो हमेशा इसको फ्रैक्शन इसका आपने एलिमिनेट करना है। फॉर एलिमिनेटिंग द फ्रैक्शन डिनोमिनेटर there is only one method, that take the LCM and multiply the whole equation with that LCM value। ठीक है, तो अगर मैं LCM निकालता हूँ 2 और 3 का, that will be 6 आपके पास आता है। so multiply हो the equation with 6, multiply equation first by 6, so it becomes 6 into 3x upon 2 minus 6 into 5 by upon 3 and minus 2 into 6। आपने सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है। सो इट बिकम 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 3, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2, सो इट बिकम 9x minus 10y is equal to minus 12। मीन दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी ये थी तो आपने इसको सेकंड नाम दे दो। ठीक है, इन द सेम वे दूसरी इक्वेशन आपको क्या गिवन है देखो क्वेश्चन बुक में, दैट इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बुक में गिवन है आपको, दैट x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। In this one again find the LCM of 3 to 6। इन तीनों का आपने LCM फाइंड आउट करना है and that LCM will be 6। ठीक है, so again multiply this with 6, so multiply by 6 to equation third। so 6 into x upon 3 plus 6 into y upon 2 is equal to 13 upon 6 into 6। so this will cancel out, this thing will also cancel out, ये भी cancel हो गया। तो आपके पास बचा है 2x plus 3y is equal to 13 and name this equation as equation number 4। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट इज 2x plus 3y is equal to 13, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गया। नाउ यू हैव टू इक्वेशन which has no denominator। first is this second equation, it has also no denominator, and this fourth equation which has also no any denominator। so अब हमने इन दोनों को सिंपलीफाई करना है। ठीक है, for that one from equation second, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो जो सेकंड इक्वेशन है वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आएगी फिर वो 9x minus 10y is equal to minus 12। तो देखिए आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट यू विल टेक दिस minus 10y ऑन अदर साइड। ठीक है, so 9x is equal to minus 12, ये माइनस का 10 ये नीचे जाके क्या मिलेगा प्लस 10, then x will be equal to minus 12 plus 10y upon 9 and you have to put the value of this x in the equation number 4। हमने इस इक्वेशन इस वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देना है। so put the value of x in equation 4। तो फोर्थ इक्वेशन आपकी थी दैट इज 2x plus 3y is equal to 13। 2x plus 3y is equal to 13 and now put here the value of x। तो ये क्या बनेगी आप देख सकते हैं 2 x की वैल्यू है -12 plus 10y upon 9 plus 3y is equal to 13। ये सारा आपका 13 के इक्वल है। Now multiply this two inside the bracket, minus 24 plus 20y upon 9 plus 3y is equal to 13। ठीक है, now again take the LCM, means आपने 9 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, then it will become minus 24 plus 20y plus 27y is equal to
170. ठीक है, so this will become, and now just simplify this equation. So 20y plus 27y will be 47y is equal to 117 plus 24. ठीक है, 47y will be equal to 117 plus 24. Simplify it, 47y is equal to, add कर दी दोनों वैल्यू को, ओके 141. सो 47y इज इक्वल टू 141 आपके पास आता है. एंड नाउ आफ्टर दिस, so y will be equal to 141 upon 47. ठीक है, 141 upon 47 and divided, when we divide it become 3. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3. तो अब इस y की वैल्यू को हमने किससे पुट करना है, दिस एक्सप्रेशन जो हमने x की फाइंड की थी इन दिस वन, और यू कैन आल्सो पुट इन ईदर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आपका तब भी आ जाएगा. ठीक है, तो इट विल बी x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 into 3 upon 9. So -12 plus 30 upon 9. So x is equal to -12 plus 30 will be 18 upon 9. So the value of x is 2. ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है. ठीक है, so this is the substitution method which you should use for solving the pair of linear equation in two variables. ठीक है, ओके. नाउ आई एम सेकंड क्वेश्चन जो आपका बेटा है, इसमें लिखा है 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24. You can solve this equation also with the method of substitution. जैसे ये मैंने सारा यहाँ पे अभी किया आपके सामने. In the same way you can solve, and after finding the value of x and y, जब आप x और y find out कर लेंगे, you will put the value of x and y in the given equation. जहां पे लिखा है y is equal to mx plus 3, वहां पे x and y की वैल्यू फिल करेंगे and you will find the value of m. तो वहां से आपका m आ जाएगा फिर. ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपके पास स्टेटमेंट सम्स हैं और इन स्टेटमेंट सम्स से हमने क्या तैयार करनी है, अपनी इक्वेशंस. ठीक है, और अगर इक्वेशन बन जाती है then you can solve all the sum like this. सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उन सभी को सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं फिर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वेशन क्या कह रहा है आपसे वो, दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. देखो पहली लाइन उसमें उसने बोला है कि दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. फाइंड देम. देम से मतलब है नंबर्स पता करने. तो वेन एवर यू आर फाइंडिंग द नंबर्स, या जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वी ऑलवेज लेट दैट, आप हमेशा उसी को ही लेट कर लेते हैं. सो आई एम लेटिंग हियर लेट दैट टू नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस है एक उसमें नंबर बिग होगा, एक स्मॉल होगा. सो लेट हियर लेट द लार्जर नंबर, that is x, let smaller number, that is y. ठीक है, लार्जर नंबर आपका x है, स्मॉलर नंबर आपका y है. द क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंस. तो मैथ्स में यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ डिफरेंस. तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैथ्स में सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है. तो इट मींस वी विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीस टू नंबर्स. आपने इन दोनों नंबर को माइनस करना है. ठीक है, तो व्हेन यू डू द सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x minus y, यानी कि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड इट विल बी 26. जो क्वेश्चन में लिखा है
26, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देन क्या लिखे आपके पास, 1 नंबर, एंड के बाद अब अगली इक्वेशन बनेगी आपकी, एंड 1 नंबर इज थ्राइस, एक नंबर दूसरे का थ्राइस है, तो ऑब्वियस है लार्जर नंबर यानी कि x इज इक्वल टू थ्राइस यानी कि 3y इज, दिस विल बी द सेकंड वन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y, आपके पास x की वैल्यू आ गई है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सिंपलीफाई, तो वहां से y निकल जाएगा, y को आप यहां पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, एंड वन थिंग मोर बेटे, जो मैं हमेशा हर बार अपनी स्टेटमेंट सम की वीडियो में बोलता भी हूं कि आफ्टर फाइंडिंग द x एंड y यू राइट दीज लाइंस अगेन, आपने एंड में जाके फिर से लिखनी है दैट लार्ज नंबर इज दिस वन, स्मॉलर नंबर इज दिस वन। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन में हमने कहीं ये नहीं पूछा आपसे कि फाइंड x एंड y, हमने ये पूछा है फाइंड लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स, तो आपको एंड में ये लिखना पड़ेगा कि आपके नंबर्स ये हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं उसका, इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब उसने आपको ये बोल दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इट मींस अब क्या होने वाला आपके पास, नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट, आपने लेट करना है लेट लार्जर एंगल, द सेम वे जैसे हमने नंबर फाइंड माने थे, अब आप लेट करेंगे एंगल्स लेट करेंगे, तो लार्जर एंगल को मैंने x मान लिया है एंड स्मॉलर एंगल को जो है मैंने यहाँ पे y मान लिया है। ठीक है, लार्जर एंगल इज x, स्मॉलर एंगल इज y, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने दो बातें बोली आपको, वन थिंग इज दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपने सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसके बारे में अपनी क्लास 7 में पढ़ा था, दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी, अभी बोला है कि whose sum is 180 डिग्री, इट मींस इन दोनों को हम सम करेंगे एंड द सम विल बी 180 डिग्री, सो यू कैन राइट x plus y is equal to 180 degree, this will be your first equation। ठीक है, एंड सेकंड उसने आपसे बोला है that the larger of 2 supplementary angles, तो इन दोनों में से लार्जर मैंने क्या माना है, that is x, that is exceeds the smaller by 18 degree, यानी जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया था जब भी मोर या लेस की बात होती है हमेशा उल्टा करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग 18 टू द स्मॉलर एंगल सो दैट दे बिकम इक्वल। ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं आपके पास x की वैल्यू आ गई है, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हियर एंड सिंपलीफाई इट। ठीक है, आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आपने जो y plus 18 आ गई है, we just put this value into the first equation and from there you will get the value of y and after finding y आप x भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन मैं कर देता हूं आपके लिए, so put equation second in first, तो क्या बनेगा देखिए, y plus 18 plus y is equal to 180 डिग्री, तो y plus y 2y is equal to 180 minus 18, जो कि मैंने आपसे बोला भी था हमेशा कि वेरिएबल आपने एक साइड पे रखने हैं, कांस्टेंट टर्म आप दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, तो 2y is equal to, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 minus 2 2 10 minus 8 2 7 minus 1 6 and here is 1। ठीक है, 162, तो y is equal to क्या आएगा आपके पास 162 upon 2 and divided it become 81, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 81 एंड आफ्टर दिस क्या बोला था मैंने, यस कि आपने इस y की वैल्यू को अपनी इसमें पुट कर देना है इक्वेशन में जो आप x बराबर पुट कर रहे थे, और इन इधर इक्वेशन आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें आंसर लगा जो उसमें लगा, ऐसा नहीं होने वाला आपका। सो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल टू 81
इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इट विल बी x is equal to 81 plus 18 and it become 819, 819, ठीक है। So you can see the value of x is 99, आपके पास जो दूसरा एंगल है वो 99 होता है। And then you will write at the end that larger angle is 99 and smaller angle that is 81, ठीक है। लार्जर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसकी भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बट सॉल्व आपने करना है, ठीक है। So third question, third part is the coach of a cricket team buys 7 bats, 6 balls of ₹3800। तो आपको याद आ गया होगा कि 3.1 में भी कैसा क्वेश्चन था, 3.2 में भी ऐसा क्वेश्चन था। 3.1 में क्या था, चलिए बताता हूँ। यस, उसने बॉल बैट वाला था तो उसके जैसा ये भी है। फिर आपका एप्पल ग्रेप्स वाला भी था, वो भी इसके जैसा ही है। एंड देन 3.2 में जो आपका क्वेश्चन था पेंसिल एंड पेन वाला, वो भी इसके जैसा ही है। एंड नाउ दिस क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग बैट एंड बॉल, ये उसकी बिल्कुल सेम उसकी जैसी क्वेश्चन बनेगी आपकी। तो आप पहले लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ठीक है, दैट इज रुपीज x। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ठीक है, ईच बॉल की कॉस्ट आपने क्या लेट कर लेनी है, यस y, ठीक है, दैट इज रुपीज y। एक बैट की रुपीज x है, बॉल की कॉस्ट हमारे पास रुपीज y है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास, 7 बैट्स 6 balls, so the equation will become 7x plus 6y, ठीक है, 7x plus 6y and that is equal to how much, total cost कितनी बन रही है हमारे पास, rupees 3800। तो आपकी पहली क्वेश्चन देखो बड़े आराम से बन गई। इन द सेम वे सेकंड भी आपके पास क्या बोला उसने, 3 bats means 3x and 5 balls means plus 5 that is equal to 1750। This is equation number second and now you can solve this equation according to your substitution method which I already explained to you, ठीक है students। Okay, so now the next one is question number fourth question देखिए वो कैसे करेंगे। तो फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है टैक्सी चार्जेस। तो इसके जैसे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले हैं और वो भी सेम इसके जैसे होंगे, ठीक है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, यानी कि किसी सिटी में दो टाइप के चार्जेस लग रहे हैं। एक तो फिक्स है, मतलब लगना ही लगना है, आप बैठिए आप बाहर आके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और एक लग रहा है पर डिस्टेंस के हिसाब से कि जितने किलोमीटर आप जाओगे तो वो भी साथ में आपने देना है। तो दो टाइप के चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं आपके, ठीक है। वन इज फिक्स चार्जेस जो लगना ही लगना है, सेकंड आपके पास में लग रहा है दैट इज चार्जेस अकॉर्डिंग टू द योर डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो आपने यही दोनों को मान लेना। देखो एंड में जाके लिखा भी उसने व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, यही हमने यहाँ पे लेट कर लेना है। सो फर्स्ट लेट द चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारे पास जो है वो है x, देन लेट द चार्ज पर किलोमीटर, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से है वो रुपीस y मान लो। तो क्वेश्चन खुद ही बताते हैं कि आपने क्या लेट करना है, खुद ही लिखा है क्वेश्चन, जो फाइंड करना है वही लेट कर लेना आपने, ठीक है।
में एक खासियत और भी है कि जो ये थर्ड चैप्टर में जितने भी स्टेटमेंट्स आपने ना बेटा, इसमें वो दो चीज़ों की हर बार बात करेगा, दो चीज़ें आपने दो चीज़ों कॉस्ट या जो भी है फाइंड करना ही करना है। तो वहाँ से पता लग जाता है कि एक आप एक्स मानोगे, एक आप वाई मान के चलोगे, ठीक है। ओके, अब देखिए हम अपनी पहली लाइन तो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लाइन पढ़िए। सेकंड में क्या लिखा है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 10 है और डिस्टेंस का चार्ज कितना है हमारे पास? वाई रुपीज। तो द चार्ज इज पेड ₹105। तो हमने जो चार्ज पे करना है वो 105 पे करना है। इट मींस योर इक्वेशन विल बिकम, फिक्स चार्जेस जो है वो तो लगने ही लगने, वो तो देने ही देने आपने, तो दैट विल बी x। फिक्स चार्ज तो आपके लगने ही लगने, तो आपका x आ गया, प्लस जो आपने चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से देने, और कितने किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, दैट इज 10 किलोमीटर। सो आई विल राइट हियर 10 y and that is equal to how much? उसने कितना बोला हमें? 105। so that we will write here 105। this is equation number first। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। इन द सेम वे आप सेकंड बना सकते हैं। पढ़िए अगली लाइन में क्या लिखा है? एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब वो 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 के लिए उसे कितना पे करना पड़ रहा है? 155। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? यस थिंक, अब 15 किलोमीटर बोला है, पहले 10 किलोमीटर बोला था तो ये था, अब 15 किलोमीटर है। यस x प्लस 15y, क्योंकि फिक्स चार्जेस तो लगने ही लगने हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 155। 155, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, finding the value of x from first and put this x into the second and simplify। तो वहां से आपका x and y easily निकल जाएगा, and then write these two lines at the end। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है, ठीक है, और वहां पे भी आपने सेम ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है। तो क्या है वो? तो क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब उसने बोला कि फ्रैक्शन, तो जब भी फ्रैक्शन वाली बात आएगी ना बच्चों, आपने 3 लाइनें अपनी पहली बोर्ड पे लिख लेंगे, अपनी कॉपी पे 3 लाइनें वो लिख लेंगे। कौन कौन सी वो 3 लाइनें हैं? फर्स्ट यू विल राइट दैट लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आपने लेट कर लेना है x, लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लेना है y, देयरफॉर फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या बन जाएगा? x अपॉन y। सो यू कैन राइट हियर x अपॉन y, आप उसको x अपॉन y लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है अब आप वही करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, अ फ्रैक्शन बिकम्स, बिकम्स यानी मैथ्स में बिकम्स का मतलब इक्वल होता है, याद रखिएगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल मतलब 9/11 कब बनता है ये? इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी अब आपने 2 ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस तरीके से उसने आपसे बोला कि 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में आपने 2 ऐड करना है, देन इट बिकम्स यानी इक्वल 9/11, तो आपका 9/11 बन जाता है। नाउ डू हियर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इससे करेंगे, तो 11 into x plus 2 and 9 into y plus 2। so करिए मल्टीप्लाई, 11x plus 22 plus equal to 9y plus 18। तो 11x ये प्लस का 9y इधर आके माइनस 9y, 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन जो है वो फर्स्ट रेडी होगी, ये आपकी फर्स्ट तैयार होगी है। इन द सेम वे वी कैन कंस्ट्रक्ट इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल सेम यही फॉलो करेंगे हम मेथड। तो आई राइट हियर फर्स्ट x अपॉन y, मैंने x अपॉन y लिख दिया है। अब पढ़िए आगे क्या लिख रहा है। इफ
3 is added to both the numerator and denominator. अब उसने 3 ऐड करने के लिए बोल दिया है, तो आई एम एडिंग हियर 3 टू बोथ। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मल्टीप्लाई बोल देता है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कई बार किसी क्वेश्चन में वो आपको जो है माइनस भी बोल देता है तो माइनस कर दीजिए, कई बार वो सिर्फ एक ही में करने के लिए बोलते हैं, यानी कई बार वो सिर्फ न्यूमरेटर में कहते हैं ऐड करो पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोलेगा, तो आपने मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, जस्ट कॉपी द स्टेटमेंट, कॉपी जो स्टेटमेंट कह रही है उसको फॉलो करते जाइए, आपकी इक्वेशन गलत नहीं बनेगी कभी भी। ठीक है, and now again it becomes means equal 5/6, ये 5/6 बन जाती है। now again do the cross multiply, 6 into x plus 3, 5 into 5 plus 3, now multiply 6x plus 18, 5y plus 15, so 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, then 6x minus 5y is equal to minus 3. So now you can see your second equation also framed. Second equation भी बन गई है, first already बन चुकी है, तो आप किसी भी x की या y की वैल्यू फाइंड कीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए and solve this question your according to substitution method. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिक्स्थ वन, योर क्वेश्चन 6 इज सेइंग सो क्वेश्चन 6 इज सेइंग 5 years hence, hence का मतलब याद रख लो बेटा, hence का मतलब यहाँ पे होता है आपका प्लस, मैथ्स में hence का मतलब अगर एज वाला क्वेश्चन आता है तो वहां प्लस होता है, hence का मतलब प्लस होता है। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ द सन, मतलब सन की जो भी एज है उसकी 3 times हो जाएगी 5 years अगो। अब अगो का मतलब मैथ्स में होता है माइनस, पीछे को जाना है आपने, द एज विल बी 7 times, वो 7 times हो जाती है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो देखो जो उसने आपसे पूछा वही मैंने आपसे बोला था लेट कर लेना है। फर्स्ट आई विल लेट हियर, दो पर्सन यहाँ पे, एक जैकब है और एक उसका सन, दोनों ही हम लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ जैकब will be x years and age of son is y years। ठीक है, जैकब की एज x years, सन की एज y years। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कह रहा है देखो पहले लाइन में 5 years hence, तो 5 साल बाद की बात उसने की है। नाउ जस्ट ऐड 5 टू बोथ x plus 5 and y plus 5। ठीक है, दोनों में 5 5 आपने ऐड कर देना है। एंड ही इज सेइंग ही विल बी 3 टाइम्स, वो आपके अपने सन की एज का 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, जो भी सन की एज है उसका 3 टाइम्स हो जाता है, बट 5 साल बाद के लिए उसने, दैट इज नाउ इक्वल, सो x plus 5 is equal to 3y plus 15, x minus 3y is equal to 15 minus 5, then x minus 3y is equal to 10। So this is equation number first। ये आपके देखिए कितने आसानी से इक्वेशन बन गई है। इन द सेम वे, बिल्कुल सेम, अब आप सेकंड पढ़िए क्या लिखा है, वैसा बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। 5 years ago, आपको अगो बोल रहे हैं, तो जहां पहले प्लस कर रहे थे वहीं हम अपने माइनस कर देना है। ठीक है, दोनों में से 5 years माइनस कर देने हैं। एंड नाउ दिस बिकम 7 टाइम्स, आप उसमें 7 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, पहले 3 टाइम्स बोला था, अब 7 टाइम्स, तो इट बिकम x minus 5 is equal to 7y minus 35, then x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, x minus 7y is equal to minus 30। So this is your equation number second। ठीक है, now you have both the equation first and second। Again you can solve, find the value of x from first and put this into the second and you will get your answer y as well as x। And
At the end of the question, after finding the value of x and y, you write the statement again, ठीक है, by putting the value of x and y. ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है, समझ में नहीं आया, प्लीज सी द वीडियो अगेन. आई एम श्योर आपको आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल